Hi, welcome back to the channel. I know it's been so long, and here we are again. Today I'm going to be teaching Cell the unit of life. Today, I better inform you before starting that you should keep your NCRTs ready with a pencil in your hands too. So because this lecture is going to be all about NCRT. Okay, so let's start the chapter. We will read each type of NCRT and understand it, and I will tell you the extra concepts if there are any, in case you need them. Okay. So when you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that is in anything that does not have a living thing has? The answer to this presence of basic unit of life, the cell in living organism. So here we are in the introduction of a chapter. The NCRT is trying to tell us that living and non-living things जो होती है उनके अंदर difference क्या होता है, what makes us living and what makes these boards and walls and books non-living. So इसमें ये difference रहता है कि we have cells, the basic unit of life. सो बायोलॉजी जो है वो सेल को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है. इट्स लाइक द फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो वी आर नॉट we do not have to go so much deep into that concept because it's just a waste of time. We just have to realize that what cell actually is. We have to feel what cell is. So all organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organisms, while others, like us, are composed of many cells called multicellular organisms. Okay, so now we have two different things made up of cell organisms. We know that the organisms are made up of cells, but the organisms which are made up of single cell are known as unicellular, and the organisms made up of multiple cells are known as multicellular. That we also discussed. Okay, a lot of things from this chapter will be like the things we already discussed in chapter the biological classification, and that's why this chapter is very important. The biological, like every chapter is important in its own perspective, but still biological classification बहुत important था because it was the basic chapter from class 11. You have to learn everything from it and it will be applied to other chapters in the biology. Okay, तो अब इसके साथ में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज सेल? लाइक unicellular organisms are capable of one, independent existence, and two, performing the essential functions of life. So unicellular organisms जो होते हैं ना वो independently exist कर सकते हैं. Okay, like here we have an example. If you are single, you can like live on your own. तुम्हें और किसी की like परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू बी ऑन योर ओन. मतलब तुम्हें ना किसी की ज़रूरत है ना किसी की देखभाल करनी है. बट यहाँ हर चीज़ का एक प्रो एंड एक कॉन होता है. लाइक अगर यू आर नॉट सिंगल, यू आर कमिटेड विद समवन और यू आर कमिटेड विद योर फैमिली, दैट्स ऑल्सो दैट ऑल्सो काउंट्स एज अ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स. सो जब आप सिंगल होते हो तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी और पर्सन की केयर करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू लुक ऑन योर ओन. बट जब आप नहीं होते हो तब क्या होता है ना कि यू हैव टू वरी अबाउट देम, यू हैव टू डू सम थिंग्स एंड थिंक अबाउट देम बिफोर यू डू इट, ताकि इट माइट नॉट हर्ट द अदर पीपल हु आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप इटसेल्फ. सो बेसिकली बात क्या है ना, अब इसके ये तो हो गए दोनों के लाइक एक का प्रो एंड एक का कॉन. अब उसमें नेक्स्ट चीज़ कॉन क्या रहती है? लाइक आई एम trying to explain you the meaning of unicellular and multicellular organisms. Like unicellular organisms जो होते हैं वो होते हैं single people, and these single people do not require any other cell to maintain their own life cycle. वो independently exist कर सकते हैं, वो खुद का काम खुद कर सकते हैं, उनको और किसी की ज़रूरत भी नहीं है. बट अब इसमें ये एक्सेप्शन, इसमें एक ही कौन आ जाता है कि उनके वर्क जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं. अब जैसे अगर आप सिंगल, आई एम ट्राइंग टू explain it with a loving relationship. Let's take an example of that kind of relationship. तो अगर वैसे टाइप की रिलेशनशिप है तब तो आपको मैंने बता दिया कि लाइक उसमें आपका कौन क्या रहता है. यू हैव टू वरी अबाउट द अदर पीपल ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर देम ऑल्सो बिफोर लुकिंग at yourself or before doing other things in your life yourself. You have to make decisions
that are combinedly made. Okay, but जब आप नहीं हो जब आप इसका मैं प्रो बता इसका ये है कि अब कुछ चीज़ें होती है ना जो यू नीड देम एंड विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद द अदर पर्सन यू विल नेवर बी एबल टू गेन देम. तो ये जो चीज़ें होती है ये आपको तभी मिलेगी जब आप मल्टी सेलुलर हो, राइट. तो अगर आप मल्टी सेलुलर नहीं हो तो आपके पास एक कॉन भी है एक प्रो भी है. सो अब इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं जितना उन्हें ज़रूरत है. उनको नीड है और चीज़ों की, लाइक जो और चीज़ें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं वो मुझे भी करनी है. बट वो आप नहीं कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते. यू कैन सर्वाइव विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद अदर पर्सन, बट देर आर सम नीड्स, सम पीपल डू नीड देम, सो इट्स नॉट अ नेसेसिटी. सो अब ये बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को थोड़े एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, थोड़े क्या बहुत है. अब लाइक गोइंग टू द रूट्स अगेन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने, उन्हें और किसी सेल की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले अपना काम सारा कर रहे हैं. अब और किस तरह इन्वॉल्व वो भी कर सकते हैं. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अब उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है इन आर प्रीवियस क्लासेस. लाइक सबसे पहले एक बेसिक यूनिट होती है सेल. सेल से हम लोग बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं एंड वी मेक अ टिश्यू, एंड आफ्टर मेकिंग अ टिश्यू अ लॉट ऑफ टिश्यूज कंबाइन एंड मेक वन ऑर्गन, एंड आफ्टर मेकिंग एन ऑर्गन द number of organs combine and make an organ system, and those organ system combinedly make an organism. Okay, this is like a perspective from ecosystem, like organisms combine and make population, community, biomes and everything. It's a really huge concept, but what I'm trying to tell you is a lot, like छोटी छोटी चीज़ें कंबाइन करती हैं. द बेसिक यूनिट वी आर टेलिंग, लाइक एक यूनिट, एक क्वांटिटी में क्वांटा जो हमारे पास में है उसे हम सेल कहते हैं. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू और गिव यू द फील अबाउट सेल, व्हाट सेल एग्जैक्टली इज. तो जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है, वो एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी. बेसिक मीन्स अब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिकॉज व्हेन वी लुक इनटू सेल, हम लोग जब सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है विच इज़ मच स्मॉलर देन अ सेल. Okay, so it's not the smallest unit, but it's the basic unit. A nucleus cannot survive on its own, but a cell can survive on its own, and it is known as unicellular organism. But when we combine a lot of cells and do perform one function, when we call it a tissue, it's not an unicellular organism anymore, it's multicellular organism. Okay, and again फिर टिश्यूज़ कंबाइन होंगे, एक ऑर्गन, हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन हुए, हमारा उन्होंने स्टमक बना दिया. फिर वही स्टमक जब बना उसके साथ साथ में और अलग टिश्यूज़ कंबाइन होके हमारा इसोफेगस, माउथ, बकल कैविटी ये सब बना रहे थे. फिर यही सब जब साथ में बन चुके थे तब हमारे ये ऑर्गन्स बने थे. लाइक बकल कैविटी हमारे एक ऑर्गन है, स्टमक हमारे एक ऑर्गन है, इसोफेगस ऑर्गन है. ये सारे ऑर्गन्स मिले, इन्होंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया. फिर ये जो हो गया एक डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स. और जब यही एक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से बन रहा था तो हमारी बॉडी में एक अलग वर्क और चल रहा था. लाइक डिफरेंट टिश्यूज वर कंबाइनिंग एंड मेकिंग यूरिनरी ब्लैडर, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंड एंड मेड एंड किडनी. ये सारे ऑर्गन्स बने, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये सब ऑर्गन्स बने. और ये सब ऑर्गन्स ने सोचा कि हम साथ में कंबाइन होंगे. अब ये लोग जब साथ में कंबाइन हुए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना. तो फॉर एग्जाम्पल वी स्टडीड अबाउट 2 सिस्टम अभी के अभी. इसके अलावा वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो, वी हैव अदर सिस्टम. सो ये सारे जो है ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. ऑर्गेनिज्म वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हमारे अंदर होते हैं. तो हमारे सारे सिस्टम्स को मिला के हम एक ऑर्गेनिज्म बने. Okay, so it was just all about the feel of getting what cell is. Now we are going to go what NCERT is. Okay, so anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. वही मैंने अभी आपको बताया कि सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, बट सेल के नीचे भी एक यूनिट है, दैट इज न्यूक्लियस. और उसके अलावा भी सेल के अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं, वी नो, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग, देयर आर अ लॉट.
और ये सब जो है अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइक अगर हम इनको अकेला छोड़ दें तो ये अलग अकेले कुछ नहीं बना सकते, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यही हमको एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रही है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिटन इन द एनसीईआरटी इन सिंपल एंड फन लैंग्वेज, बट वी विल ऑल्सो रीड एनसीईआरटी। Hence, the cell is the fundamental structure and functional unit of all the living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described live cell. So this is an data that we have to remember that Anton von Leeuwenhoek जो थे उन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो था न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। सो सेल किसने करा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंड न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन इन एनसीईआरटी ऑल्सो। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, एंड श्लीडन एंड स्वान जो थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ये भी आगे आएगा हमारे इसमें। श्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, रुडोल्फ वर्चो ने उसे मॉडिफाई किया था, फाइनल टच दिया था। ओके, यही जो था ये हमारा लाइक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक नॉलेज जो आता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट इज the invention of the microscope and its improving leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो आगे आगे चलते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, फिर उसकी वजह से हम लोग सेल के अंदर जाके देख पाए, तो सेल यूनिट उसके अंदर जाके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से देखा, हमको पता चला उसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो नाउ वी कम टू सेल थ्योरी। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, okay, so giving a slight pressure here, Matthias Schleiden, name with surname and its occupation, a German botanist, and along with it, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plant. About the same time, Theodor Schwann, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thinner outer layer which is today known as the plasma membrane. Okay, so इसके अंदर हम लोगों को जो information याद करनी है, like remember करनी है, is the name of the scientist with its surname. Matthias Schleiden, who was a German botanist, and Theodor Schwann, who was a British zoologist. तो श्लीडन ने जो किया था उन्होंने प्लांट्स पे वर्क किया था, और एट द सेम टाइम श्वान ने जो था एनिमल्स पे वर्क किया था। जब श्लीडन ने वर्क किया तो बहुत सारे उन्होंने पता करा बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक प्लांट्स है, बहुत सारे सेल्स बनके प्लांट टिश्यू बनाते हैं, एंड उनकी आउटर वॉल हमको पता है सबसे उनका आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो एक सेल वॉल होती है। बट जब श्वान ने देखा तो आउटरमोस्ट जो स्ट्रक्चर उनको सराउंड कर रहा था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। So that was the basic difference about animal and plants that we studied in biological classification also, right? So he also concluded based on a study on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cell and products of the cells. He also concluded based on its study on the tissues that presence of cell wall is unique character of animals and plants. Unique character of the plants. तो अब इसमें यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ही कंक्लूडेड लिखा है एनसीईआरटी ने, इन्होंने एलाबोरेट नहीं किया है। तो सबसे पहले श्लीडन ने कंक्लूड किया था कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक सेल वॉल होती है। फिर श्वान ने ये थ्योरी दी कि ये जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने, बट वो लोग ये नहीं बता पाए कि ये सेल्स आते कहाँ से हैं। तो देन वी लाइक स्टडी अबाउट रुडोल्फ वर्च्यू जो हमें बताते हैं कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। लाइक इसमें लिखा है श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी दी साथ में। दिस हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन अस हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855, दिस ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू आए, उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ही गेव द स्टेटमेंट, एंड दिस मीन्स द सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। He modified the hypothesis
of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is first, all living organisms are composed of cells and products of cells. तो ये जो थी फर्स्ट पॉइंट इसने ये दी थी श्लेडन एंड श्वान ने. इसका जो सेकंड पॉइंट था जिस सेकंड पॉइंट ने इस सेल थ्योरी को कंप्लीट फॉर्मुलेशन दिया, कंप्लीट कर दिया, तो वो था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेल्युला ई सेल्युला विच वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्जू. ओके, so now next we are going to study about overview of cells. So before studying about the overview of cell, I'm going to write something on the blackboard, whiteboard, and we will see whatever. Okay, so this is what I wanted to tell you about before going into that part. So I have given a list of membrane bound organelles and non-membrane bound organelles. I hope it's clear from here. Okay, so first talking about membrane bound organelles. So basically अगर हम लोग ऊपर से define कर देते हैं कि membrane bound organelles और non-membrane bound organelles क्या होती है और कहाँ होती है, तो ये जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होगी, लाइक फ्रीली वो ऐसे नहीं रहती है. अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहती है कवर्ड. मेम्ब्रेन बाउंड यूजुअली हमको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हम लोगों को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली मिलती है. और ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है इन बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, व्हाट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर एंड व्हाट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर. ओके, सो दे आर ऑलरेडी प्रो बिकॉज दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन ऑर्गेनिजम्स. Apart from these two, there we have a little more like inclusion bodies. वो बैक्टीरिया से हम लोगों को मिलती है, उनका रिजर्व मटेरियल होता है, तो वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही होती है, वो फ्रीली ऐसी साइटोप्लाज्म में राइट करती है. सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक है. सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके, सो ये हम लोगों को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, ये सब क्लियर है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ टॉकिंग अबाउट देम इन ब्रीफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोगों का होता है प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस. एंड जब हम लोग आरईआर की बात करते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब हमारा होता है इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये हमारी हेल्प करती है इन सब चीज़ों में. हार्मोन एंड लिपिड सिंथेसिस, आरईआर, प्रोटीन सिंथेसिस. हम लोग देखेंगे वो आगे क्यों करती है. जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्लास 12 में 6th चैप्टर, तब हम लोगों को पता चलेगा कि आरईआर जो है वो क्यों हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में. आरईआर जो होती है ना, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो यूजुअली न्यूक्लियस से कनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो तो ऐसी ही रहती है. जब रफ आती है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जब राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, आरएनए सिंथेसिस में, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. नॉट प्रोटीन फैक्ट्री बट या द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर. नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज हम लोगों को पता है पैकेजिंग का काम करती है यूजुअली, एंड ये फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन्स भी बनाती है. लाइक अदर देन फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोप्रोटीन्स, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. बट जब फॉस्फो आ जाता है तब गोल्जी बॉडीज उनका बनाने का काम करती है. इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. लाइक 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 नीट में, कि फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन्स कौन प्रिपेयर करता है. उसमें ये दोनों ऑप्शंस थे. इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज जब हम प्रोटीन और लिपिड वर्ड पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग कम्स इनटू आवर माइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कोर्स, बट उसका आंसर गोल्जी बॉडीज था. लाइक अ लॉट ऑफ देम माइट हैव गॉट करेक्ट, बट मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका नहीं हुआ करेक्ट वो क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी कम टू क्लोरोप्लास्ट. ओके, यहाँ पे हम लोगों को नोट करने की बात ये है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. Okay, so these are both double membrane bound structures. इनके पास में खुद का वो भी होता है, न्यूक्लियस तो होता ही, इनके पास में इनका खुद का डीएनए होता है, ये ऑटोसोमल होते हैं.
सो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हम लोगों को बेसिकली प्लांट्स में देखने को मिलता है जब हम लोगों को फोटोसिंथेसिस कराना आता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मैं सारी जो पॉइंट्स हैं उन सबको ब्रीफ में बताया जा रही हूँ। ओके, सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो प्लांट्स में होता है, इनके अंदर ग्रैना करके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उधर हमारे पास में फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है जिससे हम लोगों को फूड मिलता है, लाइक प्लांट्स को फूड मिलता है फिर हमको फूड मिलता है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो सारे चैप्टर्स हैं मैं सिर्फ सारे एक एक करके चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। हम एक बार पढ़ेंगे तब हम लोग को एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट जब हम लोग दूसरी बार पढ़ेंगे तब हम सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करेंगे। अब इन चैप्टर्स को पढ़ने का कोई सीरीज है ही नहीं, लाइक आप सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ो उसके बाद में वो चैप्टर पढ़ो तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। जब आप आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको इस वाले से कनेक्ट होगा, बट आगे वाले से इसमें भी कनेक्ट होगा, मतलब लाइक उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको यहाँ समझ में आएगी जो अभी समझ में नहीं आएगी बट तब पढ़ने पे। लाइक आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो मुझको पता ही है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से ये हमारा लाइन रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ये जो होता है एटीपी पता है, ये भी ये सारी जो चीज़ें हैं ना हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है। जब हम लोगों को जब हम लोग खाना खाते हैं हम लोगों को वो खाने से एनर्जी बनानी होती है, राइट। तो एनर्जी सब बनाते हैं बट जिनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, सो वे डोमिनेंट ओवर अदर्स। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स लाइक नॉर्मली एंड देन लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये लाइक स्वीपर्स ऑफ द सेल्स इनको हम बोलते हैं। नो नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं फूड स्टोर करने वाले एंड वाटर स्टोर करने वाले, ये सारे वैक्यूल्स हैं। एंड या वैक्यूल्स के बारे में एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, लाइक वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्रोनोप्लास्ट बोलते हैं। I hope it's visible. Okay, so this was all about membrane-bound organelles, जो आपको इस चैप्टर में काम आएगी, उससे तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें हम लोगों को अभी सिर्फ दो ही पढ़ना है, एक हम लोगों को पढ़ना है सेंट्रियोल, एक हम लोगों को पढ़ना है राइबोसोम्स। तो सेंट्रियोल जो होता है वो आगे हम लोगों को ये भी आगे काम आएगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में, लाइक सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, क्योंकि ये सेल डिवीजन ही करता है, सेल डिवीजन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मैंने आपको पहले बताया प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हम लोगों का इस टॉपिक का ब्रीफ पार्ट। नाउ लेट्स गेट इनटू एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी इस टॉपिक के बारे में क्या बता रही है। ओके, सो बताते जाते हैं। Okay, an overview of cell. Again, you have earlier observed cells in an onion peel or in human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cells of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. Okay, तो अभी लोगों को इसको समझना है। हम लोगों ने बचपन में लाइक क्लास 10th में और 9th में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स करे होते थे। हम टूथपिक से यहाँ पे अपनी चीक के अंदर से हम लोग स्क्रैच करते थे, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते थे। हम लोग ह्यूमन चीक सेल देखते थे और अनियंस जो होते हैं उनके ऊपर से उनकी लाइक मेम्ब्रेन निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम लोग उसको ऑब्जर्व करते थे। तो जब भी हम वो ऑब्जर्व करते थे, आई डोंट नो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट, पहले मैंने भी कभी नहीं किया था, बट या उसके अंदर एक चीज़ डिफरेंट होती है। जो प्लांट सेल होते हैं, जो अनियन सेल है वो एक प्लांट है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट जब हम लोग एनिमल सेल को देखते हैं, लाइक आर चीक सेल, वी आर एनिमल्स, जब हमारे चीक सेल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ही जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके, ऑलराइट, सो हम लोग यही पढ़ेंगे। अब ये तो इसमें हो गया डिफरेंट, बट सारे सेल्स के अंदर एक जो कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि उनके अंदर एक डेंसली पैक्ड न्यूक्लियस होता है। वाई एम आई कॉलिंग इट डेंसली पैक्ड न्यूक्लियस? बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, लाइक कैरी करती है, लाइक डीएनए। अब ये डीएनए जो होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स भी कंडेंसली पैक्ड, बहुत सारा कंडेंस होके इतने छोटे स्ट्रक्चर में ये लोग होते हैं, लाइक अराउंड फर्मी मीटर्स। तो इतने छोटे स्ट्रक्चर में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी एक
मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तब हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूकैरियोट, और अगर नहीं प्रेजेंट है तब हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे प्रोकैरियोट। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। सो दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, द डीएनए। मैंने बताया भी क्रोमोसोम्स होंगे, उसके ऊपर डीएनए होंगे, उस सब को कंडेंस होकर पैक करेंगे वो। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas the cells that lack membrane-bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Cytoplasm is the main runner for cellular activities in both the plant cell and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. अब ये बात है, जब हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करी तो हम लोगों ने उसमें डिफरेंस बताया कि उनके तो सेलुलर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक में होती है, एक में नहीं होती है। बट अब इसके अंदर सेम चीज़ क्या होती है, हर एक सेल में एक चीज़ होती है सेम, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। इट्स लाइक वाटर, नॉट वाटर, वी कैन से लाइक इट्स वाटर इन टेक्सचर, बट वी कैन से इट्स लाइक एयर। जैसे मैं इस रूम के अंदर बंद हूँ, ये जो रूम है एक सेल है, मैं हूँ न्यूक्लियस, मान लेते हैं मैं न्यूक्लियस हूँ। अब मेरे सराउंडिंग जो है वो सारी एयर है, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स द थिंग्स दैट आर केप्ट है, अपार्ट फ्रॉम देम मेरे सराउंडिंग जो है वो एयर है। अब ये जो एयर है उसको मैं कह सकती हूँ ये जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर क्या है ना, बहुत सारी लाइक केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक टुगेदर। मतलब ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एक सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन चलती है जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिल सके। तो अब यही होता है, इसको मैंने बोला अभी यहाँ पे लिखा था, द मेन अरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटी इज साइटोप्लाज्म। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब मैं उस एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दे देती हूँ, इट इज ग्लाइकोलाइसिस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। सो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है एनर्जी कन्वर्जन में, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया जाता है। वो जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। अब वो बेसिक रिएक्शन है, वो हर किसी ऑर्गेनिज्म में होती है, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग, इट ओनली रिक्वायर साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो यूकैरियोटिक से लेके प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक सारे सेल्स में होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस सब में परफॉर्म किया जाता है। मतलब थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो सबको मिलेगी, बट अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो दैट्स द पॉइंट। Okay, so next is, besides nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures for organelles like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuole. The prokaryotic cells lack such। ये सारा जो मैंने आपको बताया ना कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनेल्स सारे होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में मतलब यूजुअली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइट। Now, ribosomes are non-membrane bound organelles found in। अब ये जो मैंने बताया ना, अब इसमें ये लिख रहा है कि राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। बट ये जो होते हैं ना यूकैरियोटिक में भी होती है, प्रोकैरियोटिक में। मतलब बेसिकली हम लोगों ने अभी यूजुअली जनरली ऐसे डिफाइन किया था, लाइक जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और जो यूकैरियोट्स होंगे उनके अंदर नॉन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा। बट अब यूजुअली ऐसा होता है, बट यहाँ पे जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, बट ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज प्रोटीन तो यूकैरियोट्स को भी सही चाहिए ना। आर यहाँ पे जो प्रेजेंट है तो राइबोसोम यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो दिस इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। Within the cell, ribosomes found not only in cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria on rough। अब ये जो होता है ना, अब आया नहीं आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन, और आया भी होगा तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट आ सकता है। रिसेंटली आई हैव लाइक थॉट ऑफ इट कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। सो राइबोसोम्स आर ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन साइटोप्लाज्म and in chloroplast, in mitochondria also। So these are the four options। So कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, हर एक ऑप्शन में 4 दे रखा है, लास्ट में लिखा है all of the above। So this is the one you could have clicked RER in the first place because इसका नेम ही ऐसा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
विद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो animal cells contain other non-membrane bound organelles called centriole which helps in cell division. ये यहाँ पे मतलब अब पता चल रहा है यहाँ पे ऐसे तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मैंने यहाँ पे 2 ही मेंशन करे हैं बिकॉज अभी इस चैप्टर में इन्हीं की ज़रूरत है, बट इसके अलावा और भी होते हैं. और ये यहाँ पे जो भी 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब अब मैं बताती हूँ इस बोर्ड पे जितना भी कुछ लिखा है यहाँ पे ये सारा जो है यूकेरियोट्स में प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोट्स में से इतना ही प्रेजेंट है. यूकेरियोट्स में सारा, प्रोकैरियोट्स में से इतना. सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू टेल यू बिफोर. सेंट्रियोल इनमें भी प्रेजेंट होता है. सेल डिवीजन हमको भी चाहिए. माइटोसिस, मियोसिस हम भी करते हैं, राइट. Cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasmas, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. ये डेटा है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे. लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते तो बहुत छोटे हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बट जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया, वो उनसे भी छोटे होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर. उनके अलावा इनसे भी छोटे होते हैं पीपीएल, प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, लंग में इन्फेक्शन करते हैं वो. तो ये जो होते हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर होते हैं. तो ये हमारे पास डेटा आता जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे. यू हैव टू रीड एनसीईआरटी वेरी केयरफुली. The largest isolated cell is an egg of an ostrich. ये बहुत सिंपल एंड बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है. एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है. Among multicellular organism, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. अब ये भी आ सकता है कि RBC जो होते हैं उनका साइज कितना होता है, 7 micrometer, like quite big, bigger than a lot of cells. नर्व सेल्स जो होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, लाइक दे माइट गो टू 90 सेंटीमीटर्स ऑल्सो. तो सर ये बहुत लंबे लंबे नर्व सेल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स. Cells also vary greatly in shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, or even triangular. The shape of cell may vary with the function they perform. तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही था अबाउट ओवरव्यू ऑफ सेल की. सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप वगैरह के हो सकते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम 8.1. यू कैन रेफर टू दैट डायग्राम. आई विल पेस्ट इट ओवर हियर आल्सो. सो दिस वाज ऑल अबाउट this lecture. It was like it has been a lot longer than the before. पहले जब हम लोगों ने करा था उसके बाद में, but yeah, I hope that you find connected to the chapter again. We will continue this इस बार no lag, at least not within one chapter. ये जो था it was all about cell, introduction of cell. Next class will be about prokaryotic cells. Okay, so thank you and have a nice day. Harshita from Life Education.